गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम EH2 हुआ इस अराउंड योर लेसन से क्वेश्चन से देयर वर 50 क्वेश्चंस। आप सभी ने उन आंसर्स का है। जल्दी से क्वेश्चंस के बारे में बात करिए। अब मैं आपको लेसन एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये भी कराऊंगा, बताएंगे आपके एटम क्या है। उसके बाद बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बात करेंगे। ये सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें जो EHM2 था, उसमें आपका ये अगर क्वेश्चन है, आप पूछे। अगर मैं आपको क्विकली सब से बात रहा हूं, रीड आउट का पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स आपका। फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस इन नेचर। तो आंसर आपका था कि आइस और जो है, फर्स्ट आंसर आपका क्या था? फर्स्ट पॉइंट का आइस और एयर। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 1 आपका था सी पार्ट। क्वेश्चन जो 2 है दैट वाज टिंच आयोडीन इज एंटीसेप्टिक क्वालिटी। क्या क्या इसके अंदर? आयोडीन अंदर क्या? अल्कोहल। आयोडीन अंदर आयोडीन अल्कोहल मिक्स कर देते हैं, देन इट कॉल्ड द टिंचर आयोडीन। दिस वाज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर था व्हिच फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। सो देयर वर ऑप्शंस कैल्शियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अल्युमिनियम। योर आंसर्स थर्ड का क्या था? डी, अल्युमिनियम। नाउ third question rust of iron articles that is called the, उसका आपका क्या है? आपका आंसर था that is a chemical change. This question 4. Now question number 5 आपका name technique used to separate the butter from that was centrifugation. 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 Then question number 6 आपका that muscle and the can be separated by the separating funnel. That was the separating funnel. This was the answer of question number 6. Question number 7 है 7 था the husk from the grain can be separated by the process of winnowing. That was winnowing. And 8 क्या था? 8th question का था and particles can be separated from matter. That was answer filtering. So these your question 8 क्वेश्चन क्लेम। पहले में था आइस एयर, सेकंड में आयोडीन अल्कोहल, थर्ड जो क्वेश्चन था आंसर था, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर जो था दैट वाज अल्युमिनियम। फिर क्या केमिकल था? फिफ्थ का दैट वाज सेग्रीगेशन, सिक्स्थ का सेपिंग फनल एंड सेवेंथ का विनोइंग और एट का फिल्ट्रेशन। नाउ क्वेश्चन 9 है 9 का क्वेश्चन 9 का which of following is a chemical change to digestion of food? Digestion of food. 10th है which of following is physical student that is a melting of wax. Then 11 students, then evaporation liquid occurs at the temperature lower than boiling point.
That was a temperature. Answer here, temperature lower. Temperature, it should be lower than boiling point. Question 12 का 12, the conversion of the gas into liquid that called the condensation. Condensation, 13 students are clouds, they are the example of aerosol. का that one brass is containing copper, जो था copper 7%, that is the radiation of food. Then question number 10, that is the melting of wax. Question number 11, that's a temperature lower than the boiling point. Question number 12 है, that answer is that gas into the liquid, that's the condensation. Then 13 is all they are the example of the aerosol. Question number 14, alloy, that the brass is a copper 70% and zinc is a 30%. Now students, question number 15. Now question number 15, the after then chalk dissolved in the water, that can be, that is example of the suspension. Question number 16. 16 then 50 gram of sugar dissolved in the glass of water at 30 degrees centigrade. On heating, that it will become as a unsaturated. And 17 is a pick up odd one, that are gold. So this is the answer of students, answer of your question number 17. 17 का आंसर है गोल्ड, अनसैचुरेटेड है, सस्पेंशन है, कॉपर एंड जिंक, एरोसोल, कंडेंसेशन, then temperature lower than boiling point, melting of wax is a physical change, digestion of food it is a chemical change. Now students, next है question number 18. Question is, which of all is liquid solutions, that is all of these, all. Then question number 9, to separate the visible liquid by the fractional distillations, that is there should be difference in the boiling temperature, should be less than the boiling temperature, should be less than 25 K. 25 K से जो है temperature, that time we can separate two miscible liquids. को then 20th में find the common, then यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 में क्या था, which show Tyndall effect, that was starch solution. और उसके बाद में 22 में solutions are near, solution are they are the homogeneous in there. Then 23 में suspension are in the nature of the heterogeneous. Then 4 में the size of the particle of the solution is less than 1 nanometer. Then 25 में it can pass the filter paper, that was solutions and colloidal. And that was colloid. Then 26 में color component can be separated by the chromatography. So this is the answer of question number 26.
Now question number 27. Question, student. RNA from sugar they can be separated by a hand picking. और 28 में the component of the air obtained by the fractional distillation. Fractional distillation. And 29 the naphthalene ball and the common salt that can be separated by sublimation. And 30th में student calculate the percentage concentration of the solution when 10 gram of sugar is dissolved in the 100 gram of the water. That answer is a 9.09. But first one का question क्या है 31? Which property of the pure water proves that it is a pure water? So it has a fixed, then it has a fixed boiling point. It has a fixed boiling temperature. Question 32. Boiling point of oxygen is, it is a -183 degree Celsius. 33 का क्वेश्चन है boiling point of the argon is -186 और boiling point of the nitrogen is a -196 degree Celsius. So this is the answer of question number 34. 35 में question number 35 to separate the drugs from the blood, then it is a to separate the drugs from the blood, then it is a chromatography. Chromatography. So question number 35 chromatography ये भी हमने किया up to 35. Question number 36. Question student, the saturated solution question है the saturated solution can be converted into unsaturated solutions. So answer that is by increasing the temperature. Increasing the temperature, we can make the that is the unsaturated. We can make the saturated solution as an unsaturated solution. 37 में the state of the solution is the stable. 38 में the nature of 37 is the state of the solution. उसके बाद में the nature of the solution is it is a transparent. ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन क्या है ट्रांसपेरेंट स्टेबल भी होता है और 39 क्वेश्चन हमारा द नेचर ऑफ द कोलाइड इज इट इज अ ट्रांसलूसेंट दैट वाज ट्रांसलूसेंट 40 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 40 नेचर ऑफ द सस्पेंशन द ओपेक देन 41 क्या था द aqueous solution means gas as a solvent, water as a solvent. Aqueous का मतलब है कि water हमने यूज किया as a solvent, that is called the aqueous solutions. Question number 42. Alloy is a type of mixture. It is a homogeneous mixture. Question number 40. Steel is a alloy of iron plus carbon. 44 में the constituents can be separated by the physical methods that the mixture. This is the answer of question number 44. Now student, question number 45 क्या है
मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45 स्टूडेंट, the constituents separated by the that was the it is a by the physical process that cannot be separated by the physical process, उसमें क्या आ जाएगा compound। कंपाउंड के जो constituents हैं that cannot be separated by physical process। 46 में miscible liquids they are water plus alcohol, water plus alcohol। 47 में find the odd one, so odd one में क्या आ जाएगा आपका बाकी ब्लड एयर है सॉइल है the mixture। अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अ कंपाउंड। 48 में 20 gram of the salt dissolved to form the 100 gram of solutions, calculate the percentage concentration। Student, the answer of this is a 20%। 14 में calculate the amount of the solid present in the solutions of 120 gram when solid is 100 gram, so answer it is a 20 gram। Question number 15, separation that is used in the blood for blood and urine in the laboratory, that is called centrifugation। So students, these were the solutions। ये सारे आपके क्या थे आंसर से क्वेश्चन जो आए थे सिस्टम 2 में। So now students will start with the lesson that atoms and molecules। अब हम स्टार्ट करेंगे नया लेसन दैट्स द atoms and molecules। एटम्स और मॉलिक्यूल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एटम्स के बारे में। जनरली नोन द एटम्स क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स the smallest particle, जब we say that it is an atom। सबसे पहले क्या था कि when the initial stage, सबसे पहले क्या it was considered that atoms is the smallest particle which cannot be further divided। पहले ऐसे सोचा जाता था एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एंड it cannot be divided, it cannot be divided। ऐसा पहले माना जाता कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एंड इट कैन बी डिवाइडेड, और उसको हम क्या कहा, इट वाज नोन एज परमाणु। ऐसा भी सुनने में आया होगा कि आपने सुना होगा कि एटम को क्या कहते थे पहले, परमाणु। देन आफ्टर दैट द सम पीपल सेड, बाकी बाद में कुछ लोगों ने कहा कि जो एटम है इट इज नॉट अ, एटम जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, इट कैन बी डिवाइडेड, इट इज नॉट atom is that it is not a individuals, that it is a it ऐसा पहले कहा जाता था, बट बाद में ऐसा हो गया कि एटम्स के भी क्या करते हैं कि आगे जब हम पढ़ेंगे उसके भी एटम्स के भी क्या करते हैं, देयर आर सब पार्टिकल्स जिसके हम पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे फर्दर। उससे पहले क्या कहते हैं कि जब 18th सेंचुरी में क्या कहते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड की जब बात करने लगे तो उस समय क्या कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड, कि उनके जो एलिमेंट और कंबाइन
जब एसिड्स कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका किस हिसाब से बनाते हैं वो सारा जो डिस्कशन 18th सेंचुरी में बाद में जो साइंटिस्ट थे दैट वाज लेवोल्स और जोसेफ ने क्या किया था, दे हैव द लास्ट, उसको हमने क्या कह दिया था, दैट वाज द लास्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्होंने जो किए थे लॉ ऑफ केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। सो जो दो लॉ हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के, जो दो लॉ हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हम करेंगे। व्हाट आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस? पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टूडेंट जब बात आती है कंजर्वेशन वर्ड की, बात आती है कंजर्वेशन, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है। आपने पढ़ा था कि कंजर्वेशन का मतलब है कि which cannot be created, which cannot be created and it cannot be destroyed also। किसी को क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या था, कंजर्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to the law of the conservation of mass, mass can neither be created, mass can neither be created and cannot be destroyed also in the chemical reaction। According to this law, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बात किया है कि केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया है, तो मैं आपको बताऊं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन वो है जिसमें जो है रिएक्टेंट टेक पार्ट करते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पे क्या लिखा, A + B = C + D। जो मेरा A + B है जो लेफ्ट हैंड में है, इसको मैं क्या लिखूंगा, रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड में रहे हैं ये क्या हमारे प्रोडक्ट। अब इस लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस से क्या होना चाहिए, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड इट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। एक अगर ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स जो है दे आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस और क्या फॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट बने हैं। अगर हम बात करते हैं जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही अगर मान लो प्रोडक्ट का मास रहेगा, तब हमारा क्या करते हैं कि जो ये वाला लॉ है, नाउ इट इज अ ट्रू। इस लॉ का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट का मास है ना ही अगर मान लो प्रोडक्ट का मास है, तो इसका मतलब क्या है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज करेक्ट। जो स्टेटमेंट है यही स्टेटमेंट दे रही है कि जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है, केमिकल रिएक्शन में दोनों मास इक्वल होते हैं। इसीलिए about the conservation mass, अगर रिएक्शन लिखता हूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और बाद में यहां पर लिख देता हूं मैं वाटर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है 2 ग्राम और ऑक्सीजन है 5 ग्राम और वाटर अगर मेरे बनता है 7 ग्राम है, इस मतलब क्या दोनों कितना हो गया, 7 हो गया, 7 ग्राम, और मेरे पास रिएक्टेंट कितना है 7 ग्राम है और प्रोडक्ट भी कितना बन रहा है 7 ग्राम। मींस मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। इट मींस दिस इज ओनली द स्टेटमेंट, और यही जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, ये स्टेटमेंट यही है कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, तभी हमारा ये लॉ प्रूव होगा। सेकंड लॉ है स्टूडेंट हमारा सेकंड लॉ है
सेकंड लाइन में हमारा दैट इज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion, law of constant proportions. इसके हिसाब से क्या होगा स्टूडेंट, इन द इट्स अ इन द सबस्टेंस in the chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. ये स्टेटमेंट है ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की इन द केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस की बात करते हैं कंपाउंड की, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द मास. एग्जांपल लेते हैं, वाटर का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स. वाटर का एग्जांपल है, हमको पता है किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है मिलकर क्या बना है, वाटर. इसको बैलेंस भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे अभी हाइड्रोजन कितना हो गया 2:4, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. अभी स्टूडेंट यहाँ प्रोपोर्शन बाय द मास, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो देखिए क्या हो गया स्टूडेंट, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, हाइड्रोजन का कितना हो गया 4 मास. अभी ऑक्सीजन का मास जो है 16 है, तो 2 इसके अंदर 2 एटम है, 2 into 16 तो कितना हो गया 32. तो इस रेशियो को अगर करेंगे 4 1 जा 4 4 8 जा 32. तब फॉर्म हुआ जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की रेशियो में प्रेजेंट होंगे, तब वाटर वाटर बनेगा और ये रेशियो फिक्स है. दिस इज ओनली द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कि एक केमिकल कोई सब्सटेंस है, हमने वाटर का एग्जांपल लिया स्टूडेंट, वाटर में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन कितना है दैट इज 1 और ऑक्सीजन कितना है 8, इनकी रेशियो फिक्स है. दिस इज द ओनली अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. नाउ स्टूडेंट फर्दर इसी पे आपका जो फर्स्ट